In class 7, we have completed one chapter in civics. So we are moving ahead. We have started one new chapter in geography, chapter 1, our environments. So we will start the chapter with the topic, what is the meaning of environment and to whom we say that they are the part of environments. Okay, now let's start the chapter, our environments. Now what is the meaning of environments? Environment means surrounding. So we live where, just check out your surrounding, that what you are having. Plants, that means living and non-living things, all. Animals are there, okay, buildings are there, roads are there, schools, hospitals. So whatever you are having in your surrounding, तो आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं सराउंडिंग में, so that is been called as environments. Our nature. So overall we will see that natural environment, first of all, the things which has been made by God or naturally, then things which made by human beings, just example buildings, roads, hospitals. So we will move in this way. Now natural environments, just if we move to the natural environment, the things which has been made by nature, for example lithosphere. What is the meaning of lithosphere? Hydrosphere, atmosphere, biosphere and human environments. So natural environments are having part of all this. Lithosphere means land. We will discuss one by one all these things. Hydrosphere, water. Atmosphere, air. So air, water, land. And biosphere. Biosphere means these three things we are mixed together. These three things, land, water, air, when they touch each other, that area is called as biosphere. It means we need all these things for living. We need air to survive, water too, and land also. So these things are needed for the living beings, and that area where living being is living is known as biosphere. Okay, so we will learn in this chapter all these things in details. So let's begin the chapter. Over here something has been given, the natural things and man-made things. Now look around yourself and see what you are having seen. Now natural things, what you are seeing, so do it in your book with the pencil and fill this one. For example, I am giving one hint. For example, natural things, plant. In the starting I have done plants. Okay, human made, the things which has been made by human. For example, take your example of your house. So like these things, just fill all these blanks. Okay, then we will move ahead. Do it yourself, it will be easy and you will learn, or you will having interest in it. Now we will move with the words of environment. What is the meaning of environment or the definitions exact? Now the word environment comes from the French word environneur, means surround. तो environneur means, ये एक्चुअली वर्ड कहाँ से आया है? फ्रेंच का वर्ड है और इसी वर्ड से हमने environment को यूज़ किया. और इस वर्ड का मीनिंग क्या है? environneur का मीन्स क्या है? सराउंड. तो इसी तरह से environment से environment निकला है. environment which means surrounding. So the animals or human beings where they live, so their surrounding has been called as environment. Okay, so therefore the environment means everything such as human beings, plants, animals, land, water, air which surround us. तो हमारे आसपास क्या क्या है जो हमें नहीं दिखता? सबसे पहले मान लो एयर, फिर वी नीड वाटर, and where we do we live? We live in the land. So we live with the help of these things, and we are not living alone. Plant is there, animal is there. Okay, so these are the things which make us to live, and these all together are making our surrounding. तो ये सभी चीज़ हमारे सराउंडिंग में मिल रहा है, तो ये हमारा सराउंडिंग हो गया. तो इसी तरह से हम इसको बोल सकते हैं दीज आर आवर एनवायरनमेंट. तो सिंपल वर्ड में अगर हम
जैसे आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, यू कैन इजीली स्पीक आउट दैट environment the surrounding in which we live, the simple meaning. So environment means the surrounding in which we live. Clear? Environment means the surrounding in which we live. Now we will divide environment into two categories, natural and human. So we will learn this in the next topic, natural environment. Now what is a natural environment? What is a natural environment? Natural environment comprises physical and biological elements of the earth. Now again if we move in details, natural environments comprise किसे करता है? फिजिकल से एंड बायोलॉजिकल, ये दोनों चीज़ों को मिला के अर्थ बना है. तो अब ये दो चीज़ें हैं क्या? अगेन वी विल मूव इन साइड एंड सी व्हाट आर द फिजिकल एनवायरनमेंट. तो फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या बोला? नॉन लिविंग थिंग, तो जिसमें जान नहीं है, या फिर उसे आप अबायोटिक भी बोल सकते हो. तो नॉन लिविंग थिंग या फिर अबायोटिक. तो ये नॉन लिविंग थिंग एंड अबायोटिक जो है, ये क्या है हमारा? ये फिजिकल एनवायरनमेंट्स है. तो ये नॉन लिविंग, तो फिजिकल एनवायरनमेंट किससे बना हुआ है? नॉन लिविंग थिंग से. ठीक है, सच एज नॉन लिविंग थिंग में लैंड आ गया, सच एज नॉन लिविंग थिंग में क्या आ गया? लैंड आ गया, एयर आ गया, वाटर आ गया. तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन लिविंग थिंग्स. और इसे हम क्या बोलेंगे? ये हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट्स है. तो फिजिकल एनवायरनमेंट्स किससे बन रहा है? फिजिकल एनवायरनमेंट्स बन रहा है हमारा नॉन लिविंग थिंग से, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं दूसरे नाम से? अबायोटिक कंपोनेंट. क्लियर? तो फिजिकल एनवायरनमेंट्स इंक्लूड्स नॉन लिविंग थिंग्स और अबायोटिक. अब हम मूव करेंगे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट से. बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट किसे बोलेंगे हम? मीन्स लिविंग थिंग. तो यहाँ पर हमने देखा कि बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में है वो चीज़ जो लिविंग थिंग है, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे? बायोटिक कंपोनेंट. तो हमने फिजिकल में अबायोटिक पढ़ा था, अब हम इन बायोलॉजिकल में क्या देखेंगे? ये अबायोटिक से बायोटिक हो गया, मतलब लिविंग थिंग्स. तो इसी तरह से ये लिविंग थिंग है जिसे हम बायोटिक बोला जाएगा. फॉर एग्जांपल इसमें कौन से एग्जांपल लेंगे? ह्यूमंस है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एंड माइक्रोबायस ऑर्गेनिज्म, मतलब जो चीज़ें एकदम माइन्यूटली बहुत छोटी है, जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो भी चीज़ें, लेकिन उनमें प्राण है, उनमें जान है, दे आर लिविंग. सो दीज आर ऑल टुगेदर इंक्लूडेड एज बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स. सो यहाँ पे क्लियर हो गया कि नेचुरल environment comprises physical and biological environments. So we came to know about what is the physical environment and biological. तो physical environment means non living thing हो गया, example land, water and air. Okay. Biological means living environments. Living environment सबसे example अपने ले लो कि human beings are living examples. फिर plants आ गया, animals आ गया, और जो चीज़ हम नहीं देख सकते अपनी आँखों से बट फिर भी वो है, they are living. दैट इज़ माइक्रोफाइबरस ऑर्गेनिजम्स, जो चीज़ें हम अपने आँखों से नहीं देख सकते बट विद द हेल्प ऑफ मीन्स माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. ठीक है. फिर हम आगे बढ़ते हैं. इसमें क्या है कि नो दे टुगेदर मेक अप द फॉलोइंग 4 डोमेन्स और रिलम्स ऑफ द अर्थ. तो ये जो हमने पढ़ा लिविंग, ठीक है, एंड नॉन लिविंग. लिविंग एंड नॉन लिविंग में हमने क्या देखा? ये दोनों से ही क्या बना है? ये चीज़ें बनी है जिसे हमने कहा कि दे हैव मेड 4 डोमेन्स, जो जिसके थ्रू वी आर लिविंग ऑन द अर्थ, वी आर सर्वाइविंग. तो वो चीज़ें क्या है? फर्स्ट लिथोस्फीयर लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर, एटमोस्फीयर एयर, एंड बायोस्फीयर मीन्स वी आर ह्यूमन बींग्स आर लिविंग. जैसे अभी यहाँ पे देखो पिक्चर दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है यहाँ पर? कि ये जो है लिथोस्फीयर है, लैंड है, ठीक है. ये क्या हो गया अपना? हाइड्रोस्फीयर वाटर हो गया. ये माउंटेन्स है, अ पार्ट ऑफ किसका है? माउंटेन्स है, लेकिन क्या है ये लिथोस्फीयर में आ गया क्योंकि ये लैंड है हमारा, ज़मीन पे ही है. और ये हमारा वाटर हो गया, तो ये लैंड हो गया. तो ये हमारा ये क्या हो गया? लैंड हो गया. फिर
ये क्या है हमारा वाटर है। फिर ये हाइड्रोस्फीयर दैट इज़ सॉरी एटमॉस्फेयर जो है हमारा एयर है। तो ये देखो तीनों चीज़ कनेक्टेड है, वाटर लैंड से टच है, ठीक, और ये एटमॉस्फेयर भी हमसे टच हो रहा है, जहाँ पे 3 फेयर्स जहाँ पे मिलते हैं। तो जहाँ पे हमने क्या देखा कि लैंड, फिर वाटर और एयर, ये जहाँ पे मिल रहे हैं उस एरिया को क्या कहा जा रहा है, बायोस्फीयर। उस एरिया को क्या कहा गया, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर इट मीन्स कि लिविंग बींग्स, जो लिविंग बींग्स है, लिविंग थिंग्स है, जो लिविंग थिंग्स है वो कहाँ रहेंगे फिर सर्वाइव के लिए, उनको ये तीनों चीज़ चाहिए, लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए। तो ये लिविंग जितने सारे एनिमल्स है, प्लांट्स है, माइक्रोफाइबर्स है, ये सभी को क्या चाहिए, ये सभी तीनों चीज़ चाहिए, नीडेड है। तो इसीलिए हमने क्या देखा, व्हेन दीज 3 आर जॉइन तो वो क्या बनाती है, बायोस्फीयर। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि बायोस्फीयर मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि लिविंग थिंग कहाँ पे रहेंगे, बायोस्फीयर में ही रहेंगे। तो इसी तरह से इसको दिया गया इस तरह से ब्रैकेट में लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बायोस्फीयर कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दिस 3। तो ये 3 बनाता है क्या, बायोस्फीयर। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, किसमें, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स द सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ। जैसे हमने कहा लैंड, तो लैंड जो है, माउंटेन्स भी आता है, एम्प्टी माउंटेन्स, पीटी प्लेटो, ठीक है, ये भी लैंड है, ये भी लैंड है। फिर इसके साथ साथ माउंटेन, प्लेटो, प्लेन, ये भी लैंड है, ठीक है। फिर डेजर्ट ले लो, वो भी लैंड है। आइलैंड ले लो, आइलैंड इज़ ऑल्सो लैंड। तो इसी तरह से लैंड और डाइवर्स, वास्ट, बहुत है। तो इसलिए यहाँ पे सिंपल सी लैंग्वेज में बोल दिया है कि द अपर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ, ये अर्थ, इसको मान लेते हैं ये हमारा सॉलिड अपर पार्ट है। तो अर्थ में जो है, ये जो है अर्थ का आउटर एयर जो है, इसको क्या बोला जाता है, क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते थे, क्रस्ट बोलते हैं। वापस से देख लेते एक बार। इसे क्या कहा जाता है, क्रस्ट, ठीक है। तो अगर हमने अर्थ बनाया, तो ये जो पोर्शन है इस तरह से, तो ये हमारा आउटर लेयर जो है इसको क्रस्ट बोलते हैं। ये अंदर वाला जो एरो दिखाऊंगी मैं, ये हो गया इनर लेयर। लेकिन ह्यूमन बींग्स जो हम सर्वाइव करते हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम आउटर में रहते हैं। तो हम आउटर क्रस्ट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, आउटर। इसी आउटर क्रस्ट में माउंटेन्स है, इसी में प्लेटो है, पीटी प्लेटो है, इसी में माउंटेन फॉरेस्ट है, इसी में वाटर्स मतलब ओशंस हैं। तो ये आउटर लेयर में ही सर्वाइव करते हैं, इनर में हम नहीं जाते, क्योंकि इनर इज़ ऑलरेडी हैज़ बीन सॉलिड। ये सॉलिड है क्योंकि ये कोर है। ये हम पढ़ेंगे डिटेल्स में नेक्स्ट में, जब आपके चैप्टर्स आएंगे अर्थ के बारे में, ठीक है। तो इसी तरह से तो ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते कहाँ पे, ह्यूमन बींग्स रहते हैं आउटर लेयर में, मीन्स इस लेयर में, आउटर्स में। तो ये सॉलिड लेयर्स है। तो इसी में माउंटेन्स, प्लेटो, डेजर्ट सभी आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपर मोस्ट सॉलिड लेयर जो अर्थ का है उसको, और उसी लेयर को कहा जाता है लिथोस्फीयर। तो क्रस्ट को ही क्या नाम दिया गया है, लिथोस्फीयर, ठीक है। अब वो क्रस्ट बना किससे है, इट इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स मटेरियल। और रॉक्स से ही जब ये बना है, सॉलिड रॉक से बना है। रॉक्स ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। रॉक क्या होता है, रॉक्स जो है ब्रेक डाउन होता है, टूटती है। बड़ा पत्थर धीरे धीरे छोटे में जाता है, छोटा से छोटा होता है, फिर बाद में धीरे धीरे स्मॉल पार्टिकल्स हो जाता है, और स्मॉल पार्टिकल्स टर्न इनटू अ सॉइल। क्या बनाता है, सॉइल बनाता है, ठीक है। तो इसी तरह से बिग रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल रॉक्स, ठीक है। फिर स्मॉल रॉक्स इनटू और माइन्यूट स्मॉलर, देन आफ्टर दैट अ स्मॉल मीन्स डस्ट पार्टिकल्स, जैसे भी
when they assemble together they formed as soil. दिस इज अ सॉइल फॉर्म होती है. तो ये चीज़ें था और इससे हमारा लिथोस्फीयर बनता है. अब इसके अंदर क्या है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ वापस, जैसे मैंने कहा था कि लिथोस्फीयर जो है आउटर लेयर है अर्थ का, ठीक है. इसमें माउंटेन्स भी है, प्लेटो भी है, पीटी प्लेटो भी है, प्लेन भी है, प्लेन एरिया भी है, एंड ओशंस भी है. ओशंस, वाटर है ना, पानी भी है इसमें, इसी के ऊपर है. तो इसी तरह से इसी आउटर लेयर के ऊपर हमारा लैंड भी है, माउंटेन्स भी है, प्लेन एंड ओशंस भी है इसी के ऊपर. तो ये इसी के ऊपर है. इंक्लूड्स कंटिनेंट्स, तो अलग अलग कंट्रीज़ है, कंटिनेंट्स है एंड ओशंस भी है. सो व्हाट वी हैव सीन अबाउट 71% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर इज कवर्ड बाय वाटर. तो अब जो है, जैसे आपने पता है कि अर्थ, इसका जो आउटर लेयर है इसमें लैंड भी है, वाटर भी है. तो यहाँ पे 71% जो है इसका अर्थ क्रस्ट का, एटमॉस क्रस्ट, इसे क्रस्ट भी कहते हैं या फिर आप लिथोस्फीयर बोले इसको, ठीक है, लिथोस्फीयर. ये जो है 71% जो है ये वाटर है, मीन्स ओशन वाटर. और बचा कितना, 71 हो गया, तो 100% में 29% जो है वो लैंड है. तो ये हमारा लिथोस्फीयर हैविंग वाटर एंड लैंड. वाटर 71% एंड लैंड 21%, ठीक है. तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं. नाउ अबाउट 71% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ लिथोस्फीयर इज कवर्ड विद वाटर. इट कंसिस्ट ऑफ मेनी लैंडफॉर्म. जैसे मैंने बताया लैंडफॉर्म्स में क्या क्या आ गया, माउंटेन आ गया, प्लेन आ गया, प्लेटो आ गया. साथ में दीज लैंडफॉर्म कैन बी फाउंड ऑन लैंड सरफेस एज वेल एज ओशन सरफेस. तो जैसे ओशन है, मान लीजिए ओशंस हैं, तो उसके नीचे भी तो ज़मीन है, तो ज़मीन तो सभी के नीचे है. अब वो वाटर है, ये पानी है मान ले, तो पानी के नीचे भी तो ज़मीन है, लेयर्स है. तो ये क्या है कि ये भी क्रस्ट है, क्योंकि अर्थ, अब ये इस तरह से मैंने इसको कर्वी कर दिया, ठीक है ना. तो ये हमारा क्रस्ट लेयर है. तो क्रस्ट के ऊपर ओशंस है, उसका मतलब ओशन का नीचे जो टच कर रहा है ये क्या हमारा लैंड एरिया है, ठीक है. तो इसी तरह से ये चीज़ें हैं. होप आपको समझ में आ रहा है. नहीं समझ में आएगा तो इसको बार बार सुनेंगे आप. फिर आगे बढ़ते हम. फिर इसमें क्या बताया गया, दैट लिथोस्फीयर इज इम्पॉर्टेंट. तो अब हमारे लिए लिथोस्फीयर इम्पॉर्टेंस क्यों है. इट कंसिस्ट ऑफ रॉक्स, मिनरल्स विच आर यूजफुल टू अस. क्योंकि हमने देखा अभी जो क्रस्ट है इससे बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है. और इसी पे हम लोग रहते हैं. इसमें माउंटेन्स भी है, प्लेटोज भी है, ओशंस भी है. तो रॉक्स जो है इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स. तो रॉक्स किस लिए, रॉक्स इंपॉर्टेंस है हमारे लिए. रॉक्स क्या है, रॉक्स टर्न इनटू सॉइल, ठीक है. फिर ये मिनरल्स भी है इसी के अंदर, रॉक्स के अंदर हमारे लिए मिनरल्स है. तो इसी तरह से यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिनरल्स से हमें क्या बनाते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन ले लो, आयरन से बहुत कुछ बनती है. कोई भी चीज़ें जो है स्मॉल, एक नट्स ले लो, एक नट्स ले लो, नेल्स ले लो, मशीन में ये नट्स नहीं होगा तो वो खुल जाएगी. हर जगह ये यूज़ होता है. तो किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है. तो ये मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए. मिनरल्स में आयरन आ गया, स्टील आ गया, कॉपर आ गया, दे आर डिफरेंट मिनरल्स. वाटर इज ऑल्सो मिनरल्स, वाटर इज ऑल्सो अ मिनरल्स, ओके. सो दे आर डिफरेंट. सॉल्ट विच वी आर टेकिंग दैट इज ऑल्सो अ मिनरल. तो ये सब कुछ हमें कहाँ से मिल रहा है, हमारे क्रस्ट से मिल रहा है. फिर अगर क्रस्ट नहीं होगा तो बिल्डिंग्स, लैंड नहीं होगा तो हम बिल्डिंग कहाँ बनाएंगे, रोड्स कहाँ बनाएंगे, फैक्ट्री कहाँ बनाएंगे, और एग्रीकल्चर कहाँ करेंगे. तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. तो ये बहुत ज़रूरी है इसको, ये अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएंगे. तो आज जो है इसी चीज़ को हम लोग बार बार देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए. होप एक बार वापस देख ले तो ड्राइंग बना के बेटा, कि देखो ये हमारा अर्थ. तो ये हमारा अर्थ किससे बना हुआ है, जिसे हम लोग क्रस्ट के नाम से कहते हैं, क्रस्ट. इसी को लिथोस्फीयर भी कहा गया है. क्या कहा गया, लिथोस्फीयर. क्रस्ट में जब ये किससे बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है.
ठीक है। रॉक्स टर्न इनटू सॉइल हमने आगे पढ़ा, रॉक्स टर्न इनटू सॉइल। अब यहाँ पे माउंटेन, जैसे मैंने माउंटेन्स है, प्लेटो है, प्लेटो इज जस्ट लाइक दिस स्टेबल लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से होता है। फिर यहाँ पे मान लो ओशंस है, माउंटेन्स भी है, फिर साथ में फॉरेस्ट भी है ना, ये चीज़ें हैं। तो ये हमने देखा कि क्रस्ट जो है, लिथोस्फीयर जो है, इट इज़ हैविंग लैंड ऑल्सो एंड ओशन लैंड ऑल्सो। जैसे मैंने कहा था ओशन ये है पानी, तो पानी किसके ऊपर है? क्रस्ट के ऊपर है, मतलब लैंड के ऊपर है, सॉलिड रॉक्स, उसके ऊपर ओशंस है। तो इसीलिए पूरा एरिया तो ज़मीन ही है, सॉलिड है, उसके ऊपर है माउंटेन्स है। तो पता चला ठीक है, रॉक्स ही नीचे। ओशन के नीचे भी जो लेयर्स है वो हमारा सॉलिड रॉक्स है, मतलब क्रस्ट है, लिथोस्फीयर का सरफेस है। तो इसी तरह से अब इसी रॉक्स में हमें क्या मिलता है हमारे लिए? इसी रॉक्स में जैसे मैंने कहा माउंटेन्स है, फिर इसी रॉक्स के ऊपर ओशंस है, इसी रॉक्स के बाद फॉरेस्ट भी है। तो हमसे इससे मिनरल्स मिलती है। अब मिनरल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल आयरन का बताया, फिर हमने बताया वाटर इज़ ऑल्सो मिनरल्स, सॉल्ट इज़ ऑल्सो, स्टील, कॉपर, एलुमिनियम। तो ये चीज़ें हैं, ओशन के अंदर भी है, बहुत कुछ पाई जाती है मिनरल्स। तो ये सभी हमें कहाँ से मिलता है? हमारा लिथोस्फीयर से ही मिलता है। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम यहीं तक करते हैं, हम कल आगे बढ़ेंगे और आप इसे देखें ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय।